हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर 5 करेंगे ऑफ बायोलॉजी क्लास 9। दीज आर दी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स बिगिन। Question number 1 is make a comparison and write down ways in which plant cells are different from एनिमल सेल। तो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है? देखिए, प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स का पॉइंट आ गया है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल और प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल सिंगल और लार्ज होता है प्लांट सेल के अंदर, वैक्यूल आर मेनी एंड मे बी small. So nucleus present near periphery are not in the center. Plant cell में जो nucleus है, it's not in the center. लेकिन animal cell में nucleus present in the center. Mitochondria less in number in plant cell, mitochondria more in number in animal cell. Golgi body many and scattered, called as dictosomes. And Golgi body single and near the nucleus. सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है विद सेंट्रोसम्स। You can see the diagrams also here of the plant cell and the animal cell, and if you will learn all these things, it is very easy to make the comparison. Question number 2. How is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? अब prokaryotic और eukaryotes के देख लीजिए डिफरेंस क्या होते हैं। Prokaryotes में they don't have a well organized nucleus and they have well organized nucleus in eukaryotes. अब they don't have nuclear membrane obviously, तो उसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं है, और उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। इसके एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, और यूकैरियोट्स के हो गए आपके अमीबा और अनियन सेल। साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, दैट इज 1 to 10 माइक्रॉन्स, लेकिन यूकैरियोट्स का जो सेल होता है वो लार्ज होता है, 5 से लेके 100 माइक्रॉन्स तक का हो सकता है। Fifth point is the nucleus region is with a nuclear membrane and so it is called nucleoid. और जो न्यूक्लियस रीजन होती है वो वेल डिफाइंड होती है यूकैरियोट्स में, एरिया सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर membrane. A single chromosome is present, more than one chromosome is present. Membrane bound cell organelles are present, membrane bound cell organelles is present. Here is absent, sorry, in prokaryotes. Question number 3. What would happen if the plasma membrane ruptures or break down? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर रप्चर हो गई है, टूट गई है, तो क्या होगा? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? It serves as a selectively permeable barrier between cell components and the surroundings. It allows only selected material to move in and out of a cell, thereby maintains the cell's interior intact. तो इसका कितना बड़ा फंक्शन है, पहले हमने उसका फंक्शन बताया है, लेकिन अगर वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ सेल कंपोनेंट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and would ultimately result in cell death. वो तो खुल गया, उसके सारे जो कंपोनेंट्स है वो एक्सपोजर में आ गए हैं to the external environment, so ultimately it will result in the cell death. Number 4. What would happen to the cell if a cell is there, if there was no Golgi apparatus? अब गोल्गी apparatus ही absent है तो क्या होगा? तो पहले उसका देखिए फंक्शन क्या है। गोल्गी apparatus perform the function of storage, packaging and dispatch of substances synthesized by endoplasmic reticulum. So it is also responsible for formation of lysosomes. ये भी इसका important function है. So therefore, if there were no Golgi bodies, then there would be no storage, packaging and transport of material. तो ये सब तो होगा ही नहीं, and the formation of lysosomes will not take place in the absence of Golgi apparatus. तो ये सेल भी survive नहीं करेगा. Number 5. Which organelle is known as the powerhouse of cell? Why? अब powerhouse of the cell क्या होता है? Mitochondria. Mitochondria is known as powerhouse of cell because why? It serves as site for synthesis of ATP, adenosine triphosphate. The energy currency of cell. ATP serves as an energy currency for different cell activities. So the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. तो यहीं से जो सारी energy है
जो स्टोर हो रखी है आपकी एटीपी में, वहीं से जो है वो सारी पावर लेता है सेल फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. Question 6 is, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? अब ये लिपिड और प्रोटीन्स का देख लेते हैं. लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER. लिपिड्स का याद रखिए SER. एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, right? So the proteins are produced in the rough endoplasmic reticulum, which is called so because it has the endoplasmic reticulum's ribosomes. Ribosomes helps in protein synthesis. Now the lipids and proteins synthesized by the smooth endoplasmic reticulum and ribosomes respectively help in constructing the plasma membrane by the process of membrane biogenesis. Number 7, how does an amoeba obtain its food? Amoeba obtains its food by process of endocytosis. So it has flexible cell membrane. उसकी जो cell membrane होती है वो flexible होती है. So it engulfs the food particle with the help of pseudopodia, है ना, false leg, and then forms a vacuole around it. When the particle is completely trapped, amoeba secretes digestive enzymes and that digest the food, to digest that food. Okay. तो इस तरह से जो है अमीबा जो है खाने को डाइजेस्ट करता है, ट्रैप करता है, और उसके बाद वो, तो ये सारा उसकी प्रोसेस रहती है. So here you can see that how the ingestion has been done. Digestion is done, absorption is done, assimilation, digestion, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया. So you can understand it nicely. So what is osmosis? Osmosis क्या होता है? The movement of water molecule through a selectively permeable membrane from an area of higher concentration to a area of lower concentration is called osmosis. नंबर 9, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको 4 पील्ड पोटैटोज चाहिए. उनको आपने हाफ कर लेना है और उसको क्या करना है, उसको स्कूप कर लेना है. ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स. जैसे उसको अंदर से सेंटर से स्कूप कर लिया, एंड वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो. तो एक को आपने बॉइल्ड पोटैटो के साथ बनाना है. नाउ पुट ईच पोटैटो कप इन ट्रूफ कंटेनिंग वाटर. तो आपने इस तरह से कैसे कैसे रखना है, देखिए. कीप कप ए एम्प्टी, जिसमें आपने फर्स्ट वन लिया है उसको आप एम्प्टी रखेंगे. पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी. एक के अंदर आप शुगर डालेंगे 1 चम्मच, और तीसरे के अंदर आप डालेंगे सॉल्ट इन कप सी. और जो है हमारा 4th वन, तो पुट 1 टीस्पून शुगर इन अ बॉइल्ड पोटैटो कप डी. अब हमने शुगर को बी पार्ट में भी यूज किया है और हम डी में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये बॉइल्ड पोटैटो के साथ हो रहा है डी वाले में. सो कीप दिस फॉर 2 आवर्स. और 2 घंटे के लिए आपको रखना है और आपको इसको ऑब्जर्व करना है. तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी. आप देखेंगे कि ये जो कप बी और सी है, इनके हॉलोड पोर्शन में जो है पानी भर गया है. ठीक है, एक के अंदर हमने याद रखिए बी वाले में हमने चीनी डाली है और सी वाले में हमने नमक डाला है. तो क्या होता है, वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ द सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द ट्रूफ एंड वाटर इन द कप ऑफ पोटैटो. तो इसलिए ऑस्मोसिस हो रहा है, टेक्स प्लेस, एंड द पोटैटो सेल्स एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो इस तरह से यहाँ पे ऑस्मोसिस की जो है एक्टिविटी हो रही है. उस तरह से उनके जो कप्स के अंदर है पानी भर गया है. नाउ व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. अब पोटैटो ए को हमने एम्प्टी रखा है ना, तो वो क्यों नेसेसरी है, फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन. Now, third one, explain why water does not gather in hollowed out portions of A and D. अब A में भी नहीं, उसके hollow portion में कोई आपको पानी नहीं मिलेगा और D वाले में भी नहीं मिलेगा. क्यों? अब देखिए, हमने B वाले में भी शुगर डाली है, D वाले में भी डाली है, लेकिन B वाला जो था वो एक कच्चा आलू था और D वाला इट्स अ बॉइल्ड पोटैटो. So what is happening? Water does not gather in hollowed out portions of A and D as cup of A does not have change in the concentration of water to flow
फॉर ऑस्मोसिस टू अकर, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हुई है और वन ऑफ द कंसंट्रेशन शुड बी हायर देन द अदर, है ना, ऑस्मोसिस के लिए। इन कप डी में क्या हो रहा है, द सेल्स आर डेड, क्योंकि आपने उसको बॉईल कर दिया है। एंड हैंस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको लिखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस, तो ए और डी में कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, बी और सी में हो रहा है। Which type of cell division is required for growth and repair of body, and which type is involved in formation of gametes? तो हमने यहाँ पे दो तरह के आपको सेल डिविजन हमने चैप्टर में पढ़े हैं, पहले भी एक्सप्लेन भी किया था। एक है आपका माइटोसिस और एक है आपका मियोसिस। तो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिविजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, राइट, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो याद रखिए माइटोसिस जो है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व है, वेयरएज मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये दोनों आंसर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय वीडियो इफ you like it and share it and subscribe to my channel. Thank you so much.